Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your lecture number 2 of biochemistry. In this lecture, we will discuss the origin and nature of biomolecules. First of all, students, you should know about the term biomolecules. तो अब हम इसको देख लेते हैं. Biomolecules क्या है? Those molecules that are present in living organisms. तो वर्ड इंडिकेट करता है bio. Bio means life. तो लाइफ या ऐसी चीज़ जो कि रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो. तो लाइफ और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायोमोलिक्यूल्स जो है वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं या जो प्रेजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. And another thing that biomolecules are composed of carbon, or you can say that these are the compounds of carbon, because whole of the chemistry of a living organism is organized around carbon atom. So carbon, you can say that carbon is the most versatile and most predominant element of your in your life. So students, next we are going to discuss the origin of biomolecules on earth. कि किस तरह से बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी एग्जिस्टेंस हुई है अर्थ पे, किस तरह से वो ऑरिजिनेट हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बायोमोलिक्यूल्स आर अ पावरफुल कॉम्प्लीमेंट टू फॉसिल रिमेन्स इन रिवीलिंग द हिस्ट्री ऑफ लाइफ. or you can say that biomolecules are originate from the fossil remains, and these fossil remains are dead organic matter of living organisms. Dead organic matter of living organisms. These includes dead organic plants and dead organic animals as well. Living organic, dead organic matter of living organisms. Organisms. That includes animals as well as plants. So this provides you the history of life on earth and the history of biomolecules on earth. Students, next this table provides you the nature of different elements or the percentage of different elements present in living matter as well as in non-living matter. So in living matter and as well as in non-living matter, we will discuss its percentages. Hydrogen is present in living matter, that is present about 0.5%. Carbon, which is the major or the predominant element of your life, so it is present in the ratio of 18.5% present है ये. इसी तरह ऑक्सीजन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, 65% है. इसी तरह जो है कुछ जो माइन्यूट अमाउंट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दैट इंक्लूड्स नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन. जो है माइन्यूट अमाउंट तो नहीं हम इसे कहेंगे, लेकिन कहते हैं कि लिविंग मैटर में जो है वो इसके परसेंटेजेस जो हैं वो वेरी कर रही हैं. Next, we will discuss the classification of biomolecules. Now, classification of biomolecules includes two major categories, and these includes inorganic and organic biomolecules. So, दो तरह की नेचर के biomolecules हैं, inorganic and organic. As the word indicate, inorganic, so it contains no carbon content in them. इसमें कार्बन जो है वो absent होगा, कार्बन जो है इनके अंदर exist नहीं करेगा. So हम कहते हैं कि it contains no carbon contents or no carbon in them. Whereas in organic biomolecules that contains carbon as the major component in them. So next we will discuss the examples of inorganic as well as organic biomolecules. So inorganic biomolecules includes minerals, जिसमें मादनियात आ जाते हैं, next gases and water. Whereas in organic biomolecules, it includes carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, enzymes, nucleotides, nucleic acids, and vitamins. So this is all about the classification of biomolecules on Earth, and these are inorganic and organic. Next, we will discuss the nature of biomolecules that are based on the nature of molecular weight. So
This is the classification of biomolecules, which is based on molecular weight. Molecular weight. So on the basis of molecular weight, biomolecules are divided into micromolecules and macromolecules. These two categories of biomolecules are we will discuss them in detail one by one. So micromolecules are, as the word indicate, micro. So micro means small. Micro means small, and macro means large. So those molecules that are small in size and have low molecular weight, that is between 18 and 800 daltons, these are categorized as micromolecules, and these includes minerals, gases, water, amino acids and nucleotides. Next we are going to discuss the macromolecules, and all those molecules are those biomolecules that are larger in size and contains high molecular weight, that is above 10,000 daltons. These are categorized as macromolecules or macromolecules, and these includes four major biomolecules, and these are carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Students, next we are going to discuss the major complex biomolecules of cells. So these major complex biomolecules of cells includes proteins, DNA, RNA, polysaccharide and lipid. These are the major biomolecules, and these are composed of the building blocks of, as protein is composed of the building block of amino acid, DNA from deoxyribonucleotide, and in this in RNA, a ribonucleotide is the building block from which it is composed of, and in polysaccharide the building block is monosaccharide. मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है. इसी तरह जो है लिपिड जो हैं that is composed of from the building block of fatty acids and glycerol. When these fatty acids and glycerol combine, they give you a larger unit or larger biomolecule that is called as lipid. So next we will discuss the major functions of these biomolecules. As protein is responsible for the basic structure and function, that provides the basic structure and function of the cell. प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है आपकी बॉडी फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर जो बनता है, तो वो जो है इसी तरह आपके जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीनी के नेचर होते हैं, तो जितनी भी आपकी सेल की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो उसके लिए जो है प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट है डीएनए. DNA is responsible for the hereditary information or genetic information, that is genetic characters that transfers from parents to offsprings. जितने भी genetic characters transfer होंगे parents से offspring में, उसमें आपकी आ जाती है hereditary information, और वो कौन provide करता है? DNA provide करता है. Next RNA. RNA जो है that is responsible for the protein synthesis. बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट इज पोलीसेक्राइड. पोलीसेक्राइड is you can say that provides you the storage form of energy. बॉडी में जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो पोलीसेक्राइड जो है, जो कि शुगर कंपोनेंट है, वो जो है इसको स्टोर करता है. नेक्स्ट इज लिपिड. लिपिड्स आल्सो प्रोवाइड द सोर्स स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट द लॉन्ग टर्म डिमांड्स, यानी कि फ्यूचर डिमांड्स ऑफ एनर्जी को फुलफिल करने के लिए जो है लिपिड जो हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर that purpose. Next, we are going to discuss the biomolecules that includes carbohydrates, proteins, fats, and lipids in detail. So let's start with carbohydrates. Carbohydrates are the most abundant organic molecules in nature. जो abundant कहते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कि पाए जाते हैं. तो हम कहते हैं कि these are most abundant organic molecules जो हैं नेचर में, उसको हम कहते हैं carbohydrates. And the term carbohydrate is derived from the French term hydrate the carbon, that is it is the hydrate of carbon. कार्बन का हाइड्रेट यानी कि इसके अंदर जो है कार्बन भी है और वाटर कंपोनेंट यानी कि इसको हम हाइड्रेट कहते हैं, तो वो भी प्रेजेंट है. सो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CnH2O होल N.
So next we will define this term carbohydrate. Carbohydrates are defined as organic substances having carbon, hydrogen and oxygen in them, wherein hydrogen and oxygen are in the ratio of 2:1 as found in H2O. Because it contains H2O, as I have already discussed that it is the hydrate of carbon. So hydrogen is present in the ratio of 2 and oxygen in 1, so it is present in the ratio of 2:1. So next we will discuss the functions of carbohydrates. Functions of carbohydrates includes functions of carbohydrates. Functions of carbohydrates, they are responsible, or they are most abundant source of energy, that is 4 kilocalories per gram. नेक्स्ट दे आर द प्रिकर्सर्स. प्रिकर्सर्स जो कि इनिशिएटर होते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दे कैन एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज फैट्स, amino acids, etc. Next function is they are present as glycoproteins and glycolipids. Glycoproteins and glycolipids in the cells, cell membrane, and functions such as cell growth and fertilization. They are responsible, they are present as glycoproteins. Glycoproteins क्या होती हैं? जो कि prepare की जाती हैं by the combination of ग्लूकोज यूनिट्स एंड प्रोटीन यूनिट. जब इन दोनों को कंडेंस किया जाता है तो हम इनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स. इसी तरह जब ग्लाइकोलिपिड्स है तो उसमें क्या होगा कि जब आप यहाँ पर प्रोटीन की बजाय आप लिपिड कंपोनेंट्स को जब ग्लूकोज के साथ कंबाइन करेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो ये आपको प्रोडक्ट देगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. So these carbohydrates are present in the body as glycolipids and glycoproteins in the cell membrane and functions such as, and it is responsible for cell growth and fertilization. Body में जो fertilization होगी और cells ने जो fertilize करना होगा और cell की जो growth के लिए जो है ये responsible होंगे carbohydrates. Next we will discuss another function of carbohydrate, that is they are present as structural components like cellulose in plants. Plants में जो है जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, तो वो जो है इसको प्लांट को एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रही होती है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है. एंड इन इंसेक्ट्स इट प्रोवाइड्स यू द सोर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो बॉडी इंसेक्ट के बाहर जो कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, तो उसके लिए जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वेयर एज सेल वॉल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज ऑल्सो composed of carbohydrates, microorganisms. Next function is the storage form of energy. Its next function is the storage form of energy. So I have already discussed that carbohydrate provide you the storage form of energy, that is the main component is glycogen, that provides that provides you the energy demands of your body, and or you can say that future demands, that fulfills your future demand of your body. Students, next we are going to discuss the classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. Carbohydrates are classified into three main categories. These includes monosaccharides. One is monosaccharide, second one is oligosaccharide, and third one is polysaccharide. Next we will discuss first monosaccharides. Monosaccharides are the basic units of carbohydrates that cannot be hydrolyzed into smaller units, and these are sweet in taste and they are crystalline in nature. Next is oligosaccharide. They are also sweet in taste. This monosaccharide as well as oligosaccharide, both are sweet in taste. Whereas polysaccharides are tasteless. Next we will move towards oligosaccharides. Oligosaccharides.
Oligosaccharides, they can be further hydrolyzed and they give monomer units that are monosaccharides. They give monosaccharides on hydrolysis. And then polysaccharides, these are non-crystalline, insoluble in water, water में soluble नहीं होती, and they are tasteless, and on hydrolysis they also give molecules of monosaccharides from which they are composed of. Next, examples of monosaccharides are simple units. These includes glucose and fructose. So next we will discuss its classification of monosaccharides that are based on the number of carbon atoms, as well as the classification of monosaccharides that are based on the type of functional group in our next slide. Oligosaccharides, they can be further hydrolyzed, and they includes disaccharides, trisaccharides and tetrasaccharides. If it contains two monosaccharide units, two monosaccharide units, they are called as disaccharide. If it contains 3 monosaccharide units, then they are called as trisaccharide, and if they contain 4 monosaccharide units, then they are called as tetrasaccharides. Next is polysaccharide. They include its examples are starch and cellulose, whereas the example of oligosaccharides are sucrose if it contains 2 monosaccharide units. Students, next we are going to discuss the classification of monosaccharides, which is based on the number of carbon atoms, as well as the classification which is based on the functional groups. If we will discuss the classification of carbohydrates, which is based on the number of carbon atoms, they are classified as trioses, tetroses, pentoses, hexoses and heptoses. So this classification is based on the number of carbon atoms, and if it contains 3 number of carbon atoms, then they are called as trioses, and if it contains 4 number of carbon atoms, they are called as tetroses, and if it contains 5 carbon atoms, then they are called as pentoses. 6 carbon atoms, they are called as hexoses, and if it contains 7 carbon atoms in them, then they are called as heptoses. So examples of these are mentioned here. Trioses includes glyceraldehyde and dihydroxyacetone. Tetroses includes erythrose and threose, and pentoses that are 5 carbon containing sugar that includes examples ribulose, xylose and arabinose. And hexoses contains examples glucose, fructose and galactose and mannose. And heptoses includes examples pseudoheptulose and glucoheptose. Next, the classification which is based on the functional group, and these includes aldoses and ketoses. These are classified as two main categories, aldoses and ketoses. So aldoses are those contains the functional group CHO. वो वाली जितनी भी मोनोसेक्राइड यूनिट्स जिसके अंदर जो है या ऐसी शुगर्स जिनके अंदर जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO. इसको हम इस तरह से भी मेंशन करते हैं और इस तरह से भी इसको लिखा जाता है. तो कार्बन जो है वो अपनी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, तो ये एक इससे बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ये सेकंड बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, थर्ड हाइड्रोजन के साथ एंड फोर्थ वन इससे साथ जो है कोई भी पीछे आर ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप और कोई भी ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच हो सकता है. तो ये जो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक ग्रुप. और अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा शुगर के अंदर तो हम इसको कहते हैं, ऐसी शुगर्स को एल्डोसिस कहा जाता है. एंड द फंक्शनल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O, जिसको हम कहते हैं कीटोन, इसको हम कहते हैं कीटोन. कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. तो जब इनके अंदर C डबल बॉन्ड O फंक्शनैलिटी पाई जाएगी तो हम ऐसी शुगर्स को हम कहेंगे कीटोसिस. द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन. सो अब आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाली शुगर है, यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है वो है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. सो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से दीज शुगर्स आर कॉल्ड एज एल्डोजेस.
जिनमें आपके पास आ जाती हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोज। वेयरएज कीटोसिस में आ जाती हैं जिनके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इनके अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रुक्टोज। Next is oligosaccharides. Oligosaccharides are formed by the condensation of 2 to 9 monosaccharide units. जब 2 to 9 monosaccharide units condense होंगी, combine होंगी, तो ये आपको दे देंगी oligosaccharides. And depending on the number of monosaccharide units, they are divided into 3 categories, that are disaccharides, tetrasaccharides and trisaccharides and tetrasaccharides. डाइसेक्राइड्स यानी कि जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन होंगी, डाई कहते हैं दो को, डाइज टू, तो जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन होंगी तो हम उसको कहेंगे डाइसेक्राइड। जब तीन मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन होंगी तो हम उसको कहेंगे ट्राइसेक्राइड। एंड जब 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन होंगी तो हम उसको कहते हैं टेट्रासेक्राइड्स। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, डाइसेक्राइड्स में आपके पास एग्जांपल्स आती हैं सुक्रोज एंड लैक्टोज, ट्राइसेक्राइड्स में आ जाती है रेफिनोज, एंड टेट्रासेक्राइड में आ जाती है आपके पास टेक्योज। द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमनेस्ट ओलिगोसेक्राइड जो हैं वो हैं डाइसेक्राइड्स। नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। तो ये दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, जो कि लिंक्ड होती हैं बाय दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा, उनके कंडेंसेशन होगी, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर में यानी कि उस लेक्चर में हम जो है इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एंड नेचर को अगर हम डिस्कस करें डाइसेक्राइड की, तो दे आर क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया भी था। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। माल्टोज जो है दो ग्लूकोज यूनिट्स जब कंबाइन करती हैं, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये दोनों जब यूनिट्स कंबाइन करेंगी तो हम इसको कहते हैं माल्टोज। क्या कहते हैं हम इसको? माल्टोज। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माल्ट शुगर। Next is lactose, which is made up of glucose. One is glucose unit and another one is galactose unit. When these two units combine, they will give you lactose, and it is called as milk sugar, and it is found naturally in milk. Milk में जो है ये मोनोसेक्राइड जो है ये पाया जाता है, डाइसेक्राइड जो है लैक्टोज ये पाया जाता है। Next we are going to discuss the sucrose. What is sucrose? Sucrose is also a disaccharide that is also called as cane sugar, and it is a sugar that is found in sugar cane, जो कि गन्ने में पाई जाती है शुगर बीट में, and it is most abundant among naturally occurring sugars. में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली शुगर है that is called as sucrose, and it is also the important source of dietary carbohydrate, and it is made up of glucose and fructose. तो इन दोनों यूनिट्स को जब आप कंडेंस करते हैं तो हम उसको कहते हैं सुक्रोज। तो अब मैं आपसे पूछूं कि माल्टोज जो है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आपने कहना है कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, एंड सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। पॉलीसेकेराइड्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकेंस, इनको हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं। These are made up of repeating units of monosaccharides that are held by the glycosidic bond, and during its formation a water molecule is released at each condensation. Unlike sugars, they are not sweet, that I have already discussed. They are ideal as storage and structural component, and there are two main types of polysaccharides, and these includes homoglycans and heteroglycans. Homo as a word indicate that it means same, and hetero is different. Hetero means different. So if they are made up of one type of monosaccharide, यानी कि same type of monosaccharides होंगी, monomeric units हम उसको कहेंगे homoglycans, और अगर different nature की होंगी जो monosaccharide units condense होंगी तो उसको हम कहते हैं heteroglycans। एग्जाम्पल की और डिस्कस कर लेते हैं homoglycans की पहले। तो इसमें आ जाती है एग्जाम्पल स्टार्च की, ग्लाइकोजन की एंड सेल्यूलोज की, जबकि हेट्रोग्लाइकन्स में आ जाती हैं आपके पास हेल्यूरोनिक एसिड एंड एगर, काइटिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेंस एक्सेट्रा। इसमें एक और बात, जो ग्लूकॉन है दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टॉन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज,
शुगर से बनता है, ग्लैक्टॉन जो है दैट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम ग्लैक्टोज शुगर. Next we are going to discuss another biomolecule, that is proteins. Proteins are most abundant or most important organic molecules of living organisms, and they form about 50% of the dry weight of your body. यानी कि 50% जो body का weight बनता है आपका वो proteins की वजह से बनता है. And the next one is they are most important for the proper functioning of the cell. Cell अगर उसमें proteins की कमी होगी तो proper functioning जो है वो इस तरह से affected होगी. नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो अब यहाँ पर मैंने बताया था पहले कि प्रोटीन्स जो हैं वो किससे बनती हैं, अमाइनो एसिड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते थे प्रोटीन्स के. सो प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस yields amino acids, and there are 20 standard amino acids which are repeatedly found in the structures of proteins, animals, plants or microbes. And collagen is also a protein which is the most abundant animal protein. It is called as animal protein, whereas rubisco which is called as the plant protein जो कि plant में present होती है. Next, protein synthesis is controlled by DNA. Next, we are going to discuss the amino acids, which are basically the building blocks of proteins. And these amino acids are the group of organic molecules, and that contains two functionalities or two functional groups, that is amino group and as well as acid group. That's why they are called as amino acids. Because it contains amino group, that is NH2 group, and acidic group, that is COOH, carboxylic group. So that's why they are named as amino acids. Now we will discuss amino group is basic in nature, whereas carboxylic group is acidic in nature. R can be H in glycine, CH3 in alanine. Here is the structure of amino acids, and it contains amino group NH2, and here is H, and here is R group. This is the side chain. अगर आप इस R को वेरी करोगे तो आपका जो अमाइनो एसिड है वो वेरी कर जाएगा. बाकी ये सारे कंपोनेंट्स, बाकी जो इसके साथ फंक्शनैलिटीज़ अटैच्ड हैं वो सेम रहेंगी. यानी कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो COH ग्रुप ये ऐसे ही आपने लिखना है, NH2 ग्रुप भी ऐसे ही लिखना है, H भी आपने इसी तरह से लिखना है. लेकिन अब यहाँ पर अगर R ग्रुप जो है वो आपके वेरी करने की वजह से आपका अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा. अगर इस R की जगह आप H रख देते हैं तो इट विल बी योर ग्लाइसिन. तो अगर R की जगह आप CH3, अगर आप CH3 लिख देते हैं यहाँ पर, और अगर आपका CH3 है then it would be your alanine. And in others it can be hydrocarbon chain और cyclic group भी. कोई भी यहाँ पर फंक्शनैलिटी आप अटैच करेंगे तो उसकी वजह से जो आपका अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा. All amino acids contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen in them, but some of the amino acids additionally contains sulfur atom in them. And the next one is physical and chemical properties of amino acids are due to its amino group, carboxylic group and R functional group. इन तीनों ग्रुप्स के प्रेजेंट होने की वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड R ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से, इनके वेरी करने की वजह से इनकी फिजिकल as well as their chemical properties will be affected. Next is the classification, which is classification of proteins, which is based on the nature of solubility. So there are three basic categories of proteins. These are simple proteins, conjugated proteins and derived proteins. Simple proteins जो हैं, these are composed of only of amino acid residues. इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है amino acids जो हैं वो present होंगे, same यानी कि amino acids ही present होंगे. लेकिन conjugated proteins जो हैं they also contains proteinic as well as non proteinic prosthetic group इसके साथ जो है वो अटैच हो सकता है, conjugate कर सकता है. तो ऐसी proteins को हम conjugated proteins कहते हैं. Whereas derived proteins are prepared from the that are derived from the above these two proteins जिनको हम कहते हैं simple proteins and conjugated proteins. तो derived proteins जो हैं हम इनसे derive करते हैं, तो that's why हम कहते हैं कि इनको derived proteins. And these are denatured or degraded products of the above two, यानी कि इन दोनों जो ऊपर वाली products हैं यानी कि simple proteins and conjugated proteins, इन दोनों proteins को जब हम conjugate combine करते हैं तो इनसे जो हमें product मिलती है जिसको हम कहते हैं derived proteins. Next we will discuss our third biomolecule, that is lipids.
Lipids are the chief concentrated storage form of energy that forms about 3.5% of the cell content जो आपका बनता है बॉडी का सेल कंटेंट्स वो जो है 3.5% ये प्रोवाइड करता है और इसको हम कहते हैं कि दैट प्रोवाइड द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो भी बॉडी में आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स जो है वो स्टोर होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की नेचर को अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाते हैं, इसी तरह एथर में भी ये सॉल्युबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और लिपिड भी ऑर्गेनिक नेचर का है तो लाइक डिजॉल्व लाइक के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिजॉल्व होते हैं जबकि इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होते हैं। तो इसी वजह से जो लिपिड्स हैं वो उनकी नेचर है कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के तौर पर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ lipids. So functions includes they are the concentrated fuel reserves of the body की एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, एज अ फ्यूल एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लिपिड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। आपने अभी सुना होगा कभी कि जो है मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनिक इन नेचर, यानी कि वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो ये जो है मेन कंपोनेंट या आप कहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। जितने भी बॉडी में आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो लिपिड्स जो है वो सोर्स प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट सेल्यूलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो है फंक्शंस हो रहे हैं जितने भी सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि बॉडी के अंदर आपकी हो रहे हैं वो सारे के सारे उनको मेटाबोलाइज उनको रेगुलेट करने के लिए जो है लिपिड्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिपिड्स इज लिपिड्स प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड सर्व्स एज द इंसुलेटिंग मटेरियल्स। और इसके अलावा जो है ये ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स जो भी आपकी बॉडी के हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इंसुलेशन यानी कि एक्ट करता है एज अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट के तौर पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Students, next we are going to discuss the classification of lipids. Lipids are classified into three main categories just like proteins, and these includes number one simple lipids, second one is complex lipids, and third one is derived lipids. Simple lipids are the esters of fatty acids and glycerol. Esters of fatty acids and glycerol. एंड इट इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स इसमें आ जाती हैं फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं सिंपल लिपिड्स में एंड वैक्सेस आ जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो हैं जो कि हम इनको कहते हैं कि दीज आर द एस्टर्स ऑफ fatty acids and glycerol, and in addition to fatty acids and glycerol they also contains alcohol. इनके अंदर जो है अल्कोहल भी होता है, अल्कोहल भी इसके साथ जो है कंबाइन हो जाता है, फॉस्फोरस भी इसी तरह जो है इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट भी इसके साथ जो है एसोसिएट हो सकता है। तो जब हम कहते हैं कि वो वाले लिपिड्स इसमें आ जाती हैं एग्जांपल्स आ जाती हैं फॉस्फोलिपिड्स की, ग्लाइकोलिपिड्स की एंड लिपोप्रोटीन्स की। तो जब लिपिड्स एसोसिएटेड होंगे फॉस्फोरस के साथ तो ऐसे जो लिपिड्स होंगे उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और उनको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स इसी तरह जब लिपिड्स एसोसिएट होंगे ग्लूकोज यूनिट से यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट से तो हम उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। एंड इफ द लिपिड्स एसोसिएट्स विद प्रोटीन्स यानी कि उनके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे तो हम उसको कहेंगे लिपोप्रोटीन्स। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स में आ जाते हैं आपके पास स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन्स। स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन्स दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड लिपिड्स। और डिराइव्ड हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इन दोनों से जब हम इनको डिराइव करते हैं तो ऐसे लिपिड्स को हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। Next we are going to discuss about enzymes. Enzymes are called as
the biological catalyst, or these are also called as the group of catalyst functioning in a biological system. यानी कि ये बॉडी में जितने भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो है जो एंटिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं हम उनको कहते हैं एंजाइम्स. एंड दीज एंजाइम्स इन्हांस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड आर फॉर्म्ड इन द सेल अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ जीन्स. और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इन्हांस द रेट ऑफ रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन को अगर स्पीड अप करना हो तो वो उसके लिए जो है एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं फिगर जिसके थ्रू हम देखते हैं कि एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को स्पीड अप करता है. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको जो है पाथ बता रहा है. तो यहाँ पर जो ये जो स्टार्ट में ऊपर जो है आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये जब रिएक्शन आपका हो रहा था विदाउट एंजाइम यानी कि एंजाइम को अभी आपने यूज़ नहीं किया तो आपको इतना बड़ा पाथ जो है वो उससे गुजर के आके फिर आपको यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी. लेकिन जब आप यूज़ करेंगे एंजाइम को तो यहाँ पर आप देखें कि ये लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को. तो यहाँ पर ये विद एंजाइम अगर आप देखें तो ये यहाँ से तो यानी कि अगर आप स्टार्ट करें रिएक्शन को तो विद एंजाइम के साथ अगर देखें तो अब इस यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो फ़ौरन से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी. लेकिन जब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम जो है आपको इतना बड़ा पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा और फिर जाके आपको रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी प्रोडक्ट्स में. लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आप देखें कि ये बैरियर जो है एनर्जी बैरियर को कम कर रहा है और इस एनर्जी बैरियर इतना ज़्यादा एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा और रिएक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और उसे कम पाथ से गुजरना पड़ेगा और रिएक्शन को ये तेज़ कर देगा, स्पीड अप कर देगा और ये रिएक्टेंट्स जो हैं फ़ौरन से रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो फ़ौरन से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो इस तरह से विद इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम आप देख सकते हैं कि रिएक्शन की प्रोग्रेस जो है किस तरह से अफेक्ट हो रही है. In this slide we are going to discuss the nature of enzymes. एंजाइम्स की नेचर को डिस्कस करें तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स एक्सेलरेट द रिएक्शन बट डू नॉट इनिशिएट इट. एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं, लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते. डू नॉट इनिशिएट इट, क्योंकि अक्सर बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, वो समझते हैं कि ये रिएक्शन को स्पीड अप भी करे और साथ में रिएक्शन को स्टार्ट भी करते हैं, जबकि जो है एंजाइम्स दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन and they are not responsible for initiating the reaction. And the next one is enzymes themselves do not participate in the reaction and remain unchanged at the end of the reaction. और इसके अलावा जो है सेकंड इसकी जो नेचर है वो ये है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते एंड रिमेन्स अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. और जिस हालत में आप स्टार्ट में इसको डालते हैं, इसको ऐड करते हैं, आपको एट द एंड उसी हालत में ये आपको अटेन भी होते हैं. एंजाइम्स आर देयर फॉर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स. और ये जो है आप इसको स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं रिएक्शन के अंदर. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इट्स एम्फोटेरिक नेचर. एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये है, एम्फो कहते हैं बोथ को, यानी कि जिसमें अल्कलाइन जिसमें एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों एग्जिस्ट करते हैं. तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं हम उनको कहते हैं एम्फोटेरिक. तो एम्फोटेरिक है तो सो हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड देयरफॉर दे शो एम्फोटेरिक नेचर एंड द एंजाइम्स कैन रिएक्ट विद एसिडिक सब्सटेंसेस एज वेल एज अल्कलाइन सब्सटेंसेस. जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि एम्फोटेरिक का मतलब है बोथ, एम्फो का मतलब होता है बोथ, जिसमें यानी कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों एट अ टाइम एग्जिस्ट करें ऐसे सब्सटेंसेस को या ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक. सो एंजाइम्स मैंने भी बताया कि रिएक्ट करते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ और एज वेल एज बेसिक सब्सटेंसेस यानी कि अल्कलाइन सब्सटेंसेस के साथ भी. तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं दे कंटेन्स एम्फोटेरिक नेचर. एम्फोटेरिक नेचर. Here we are going to discuss some group of enzymes and examples related to enzymes. Group of enzymes, there are 6 major group of enzymes. These includes oxidoreductases, transferases, hydrolases, isomerases, lyases and ligases. Reaction catalyzed oxidoreductases जो हैं ये redox reaction में involve होते हैं. So इसका जो है reaction catalyze क्या कर रहे होते हैं, they are responsible to transfer oxygen and hydrogen atoms or electrons from the substrate to another
एंड सेकंड वन इज ट्रांसफेरेजेस, और इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं ऑक्सीडोरेडक्टेजेस में आपके पास एग्जांपल्स आती हैं डिहाइड्रोजिनेस एंड ऑक्सीडेजेस। ट्रांसफेरेजेस की अगर हम बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में जो ग्रुप है स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनको हम कहते हैं ट्रांसफेरेजेस। एज द वर्ड इंडिकेट्स ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफेरेजेस तो ट्रांसफ़र से जो है इसका फंक्शन है कि ये ट्रांसफरेंस में जो है इसका रोल है। इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास ट्रांस अमाइनेज की। एंड थर्ड वन इज़ हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सबस्ट्रेट। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। आइसोमेरेजेस हैं, आइसोमेरेजेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट। ये मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट है उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म को ही चेंज कर देते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज की। एंड लाइएसिस को हम डिस्कस करते हैं तो लाइएसिस में आती हैं नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल और एडिशन ऑफ अ ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में से कोई भी चीज़ को नॉन हाइड्रोलिटिक यानी कि जो कि हाइड्रोलिटिक ना हो उसकी रिमूवल हो या फिर उसको रिमूव करना हो या फिर उसको ऐड करना हो उस ग्रुप को, तो हम उनको कहते हैं लाइएसिस। और इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास डी कार्बोक्सिलेज की एंड एल्डोलेज की। एंड द लास्ट वन इज लाइगेजेस। लाइगेजेस जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द टू मॉलिक्यूल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड। ये दो जो है मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है और बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड इन देम। तो इसकी में आ जाती हैं एग्जांपल्स आपके पास सिट्रिक एसिड सिंथेटेज की। Next, we are going to discuss the nucleic acid as a biomolecule. Nucleic acids are called as the biopolymers, or these are called as small biomolecules that are essential to all known forms of life. तो जितनी भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है उन सारों के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। एंड द टर्म न्यूक्लिक एसिड इज ओवरऑल नेम फॉर द डीएनए एंड आरएनए। और ये जो है हम टर्म न्यूक्लिक एसिड्स हम यूज़ करते हैं डीएनए एज वेल एज आरएनए के लिए। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ, अब इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है, न्यूक्लियोटाइड्स है। दे आर कंपोज्ड ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड्स एंड विच आर द मोनोमर्स मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितने कंपोनेंट से बने हुए हैं, 3 मेजर कंपोनेंट से ही मिलकर बनते हैं। एंड दीज इंक्लूड्स नंबर 1 इज 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, and second one is phosphate, and the third one is nitrogenous base. These three components combine and they will give you a nucleotide, and when these nucleotides combine together they give you a larger unit that is called as nucleic acid. Here in this slide you can see the formation of nucleotide component, and which is composed of 3 major components, that is number 1 is pentose sugar, 5 carbon sugar। 5 carbon क्यों कहते हैं, 5 carbon sugar क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड हेयर 1 is its 5th कार्बन। तो ये जो है फर्स्ट, सेकेंड, third, fourth and fifth carbon. So this 5 carbon containing sugar is called as pentose sugar. This is its first component, and the second one is nitrogenous base. Here is the nitrogenous base, and the third component is phosphate group. So this forms the nucleotide. Next we are going to discuss the types of nucleic acids. Nucleic acids की अगर हम types देखें तो there are 2 major types of nucleic acid. These includes RNA, that is called as ribonucleic acid, and another one is DNA, that is called as deoxyribonucleic acid. RNA is responsible for protein synthesis. This is responsible for protein synthesis, whereas DNA is responsible for transferring the genetic information from one cell to another cell, or you can say that it transfers the genetic information from parents to offsprings. Genetic information. अब इसको हम क्यों कहते हैं इसको आरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है राइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट है। अगर आपके इसमें न्यूक्लिक एसिड में जो है राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी तो उसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड इफ इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर देन द पॉलीमर जो होगा उसे हम कहेंगे डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हियर इज द राइबोज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 2 पे
जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें या डीऑक्सीराइबोज की बात करें तो यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन है इसमें जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर अकेला हाइड्रोजन है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुई हुई है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो हम इसको कहते हैं, डी कहते हैं रिमूवल को एंड ऑक्सी कहते हैं ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे हम इसको रिमूव करते हैं, तो इसकी वजह से इसको नाम देते हैं डीऑक्सीराइबोज का। Here are the structures of nitrogenous bases, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि which is the component of nucleotide. Nitrogenous bases, because they contains nitrogen in them, that's why they are called as nitrogenous bases. अब इसमें आ जाती हैं दो मेन कैटेगरीज आ जाती हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस की, जिनको हम कहते हैं प्योरीन बेसिस एंड पिरिमिडीन बेसिस। प्योरीन बेसिस में आपके पास डबल रिंग्ड बेसिस आ जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आ जाती हैं एडेनिन एंड गवानीन। एडेनिन एंड गवानीन दोनों में दो रिंग्स प्रेजेंट हैं, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं डबल रिंग्ड बेसिस। तो इसी तरह अगर आप देखें पिरिमिडीन, दीज आर कॉल्ड एज सिंगल रिंग्ड बेसिस बिकॉज दे कंटेन सिंगल रिंग इन देम। और इनके अंदर आ जाती हैं आपके पास तीन तरह की बेसिस, जिसमें आती है आपके पास साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन। अगर जो है यूरेसिल है फाउंड इन आरएनए, ये आरएनए में होगी। और अगर डीएनए की बात करें तो उसके अंदर जो है जो नाइट्रोजीनियस बेस होगी वो थायामीन होगी। So students, this is all about the biomolecules, origin and nature of biomolecules. होप सो कि आपको सारा कुछ समझ आ गई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।